मॉर्निंग एवरीवन एंड नमस्कार। द नॉलेज ब्रिज और शोध फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस मासिक व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विशेष सत्र एक्सट्रैक्टिंग द डेटा फ्रॉम डेटाबेस लर्निंग द बेसिक्स ऑफ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस थ्रू आर के लिए हमारे बीच एक अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्पित विदुषी मौजूद हैं। मुझे आज की हमारी रिसोर्स पर्सन मिस इशिता चुग का परिचय कराते हुए बेहद ही खुशी है। वह एक रिसोर्स पर्सन तो है, साथ ही मेरी बहुत ही अच्छी मित्र भी हैं। मिस इशिता चुग वर्तमान में जामिया मिलिया इस्लामिया के शिक्षा अध्ययन विभाग में एक शोधकर्ती के रूप में पंजीकृत हैं और इनका शोध कार्य अंतिम चरण पे है। उनका शोध कार्य मुख्य रूप से टीचर एजुकेशन एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट विषय पर केंद्रित है। आपकी शैक्षणिक यात्रा की उपलब्धियों भी बहुत है, जैसे आपने जामिया मिलिया इस्लामिया से एमएड किया जिसमें आपको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएलएड की उपाधि प्राप्त कर टॉपर भी बनी। इसके अलावा आपने इग्नो से एमए साइकोलॉजी की उपाधि भी प्राप्त की। अनुसंधान के क्षेत्र में भी मिस इशिता चुग का योगदान सराहनीय है। आपने अभी तक 10 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। आप क्वालिटेटिव रिसर्च और नैरेटिव फ्रेमवर्क में गहरी रुचि रखने के साथ साथ तकनीकी कौशल में भी निपुण हैं। विशेष रूप से आर सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कराने में आपकी विशेषता आज के हमारे सत्र का मुख्य आकर्षण भी है। इशिता जी न केवल एक शोधकर्ती हैं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में नए नवाचारों जैसे थिएटर और स्टोरी टेलिंग जैसी शैक्षणिक गतिविधियों में भी गहरा विश्वास रखती हैं। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज वे अपना ज्ञान और अनुभव हमारे साथ साझा करेंगी। अब मैं इशिता जी को इस आभासी मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप सत्र का कार्यभार संभालें और हमें बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में अवगत कराएं। थैंक यू सो मच एंड वेलकम इशिता जी, प्लीज। Hello everyone, good morning. Am I audible? Yes, Ishita, you are audible. Yes, Ishita ma'am. Yes. Hi everyone. Hi. Good morning. Thank you so very much, Jasmeet ma'am. As we have already met on offline platforms, like Yes. we have already met on in a conference in Punjab, and now it is good to meet online as well. Without wasting any time, thank you so much for the introduction. Without wasting any time, we shall start with the theme that we have picked up for today, that is bibliometric analysis through R. But before going through that, because that is I guess that is a quite tedious process if someone is doing it for the very first time. So this it takes a lot of time. I guess if I'll be getting time, I'll be briefing about it. But for today's session, I'll be just keeping it up to the extraction of the data, how data is extracted if we have a lot of papers. So I just want to have the audience as handy. Please interact more. Whatever you want to ask or whatever you want to say, please suggest, please say. So starting this with, like, how all of you, I guess, like, can I get प्लीज लेट मी नो आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं कि इंग्लिश में, सो दैट आई कैन हैव अ बाइलिंगुअल अप्रोच और इंग्लिश और हिंदी अप्रोच इन both the manner. Please let me know this. Please, ma'am, you can. Sorry, you were not audible. I'm saying you can proceed as per your choice. Bilingual thank is you. more comfortable, I think. Okay, thank you. So starting it with like, I just want to ask a few questions before starting this session. I guess all of us are the research scholars. Somewhere we are doing PhD, we are in the like, we are ending it, we are in the process of ending it, we are in the first year, we are in the second year. I guess all agree with it. If there are certain scholars who are in the like, who are in their masters, who are doing the research, it will be helpful to them as well. So all of us as researchers, we are doing literature review, right? Is it so? You can use the chat box as well. Yes. Yeah, so all of us we are using the
literature. We are doing the literature review. Please let me know, how do you do? What is the process of doing literature review? I just want to know it. Or if I want to name some of the participants, like Shipra ma'am is there, Shipra Sharma. Would you like to speak? How do you do literature review, or in what year you are? I want to make this a bit more interactive. Yeah, Shipra, please say. Hello, ma'am. Good morning. I am Shipra, Research Scholar, Department of Education, University of Lucknow. And generally, I go by Google Scholar or ERIC, but I have not done a bibliometric analysis till now. So that's why I joined this. Okay. Okay. That is nice. See, most of us, the approach, any other wants to say something? Like Surbhi, do you want to say something? Okay. Veer sir, do you want? Yeah, we can do some bibliometric metrics for some visualization and to get clarity of our theories in terms of keywords, countries, and many other. The question was a bit different. It was, how do you do literature review? Basically, We are not here to directly jump on bibliometric analysis. We are just yeah. doing it step by step. Yeah. Firstly, we do some researches from databases like Scopus, PubMed, Web of Okay, Science. okay. Okay, thank you, Surbhi. Thank you so much. We go through different databases, Shraddha. Good. Thank you. So we had three different answers. Firstly, we just go to the Google Scholars. Usually हम लोग क्या करते थे पहले भी, जब I was in the masters, मैं भी ऐसे ही किया करती थी. Literally Google Scholar खोला and we searched for the topic and कुछ आपके सामने we have some articles, review articles, papers. We have some published papers. उनको निकाला, उनको डाउनलोड किया, उनको रीड किया. Till then we didn't have AI and anything. तो हमने उनको रीड किया, उनको स्किम किया, the ones which were important उनको साइड रखा, नहीं था उनको निकाला. इसी तरीके से हम लोग सब लोग करते हुए आ रहे थे, right? But what was the need of systematic literature review, or what was the need of looking into the extraction of data? Because there were some papers, जैसे हमने गूगल स्कॉलर पे कोई एक कुछ टाइप किया, राइट? सो देयर वर सर्टेन पेपर्स. आप कितने पेपर्स ढूंढ लोगे, एंड व्हाट इज द इंश्योर, हाउ विल यू इंश्योर कि आपने वो सारे पेपर्स उस एरिया के ले लिए हैं, आपने वो सारे पेपर्स इंक्लूड किए हैं जो अभी तक हैं. सो टू इंश्योर दिस, अभी तक हम गूगल स्कॉलर पर काम कर रहे थे, लेकिन हम इसको इंश्योर करने के लिए कि हम सारे पेपर्स इंक्लूड करें जितने भी हैं डेटाबेसेस में. सो वी गो फॉर सर्चिंग द डेटाबेसेस. नाउ आज का जो हमारा सत्र रहेगा वो है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा पे. लेट मी शेयर द स्क्रीन सो दैट आई कैन शेयर विद ऑल ऑफ यू दैट हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डेटा. अगर आप लोग इसको फोन पे ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग को, देन प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ओपन द लैपटॉप एंड डू इट साइड बाय साइड कि किस तरीके से आप लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे. अच्छा, एक बात जो मुझे और पूछनी थी वो ये पूछनी थी, क्या आप लोगों के सभी के पास जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी मास्टर्स कर रहे हैं, आप लोगों के सभी के पास मैपमा एक्सेस का, आपकी यूनिवर्सिटी का एक्सेस है? ओपन रिसोर्सेज का जो हमारा एक्सेस होता है, आप लोगों के पास है या नहीं है? No, ma'am. है? और किसी का? बाकी सबके पास आई गेस है. नो 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 नो. No. ओके, सो आई गेस आप लोगों को पहले ये एक्सेस लेना पड़ेगा अपनी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि बिकॉज हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं एंड वी मस्ट हैव द एक्सेस, तभी तो आप लोग डेटाबेस पूरा एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे कर पाएंगे? लॉगिन स्कोपस वाला, दे आस्क फॉर लॉगिन. You will get better basically with the MapMy access. I'll show you the Jamia access, MapMy access, and with that you will get to know कि हमें variety of journals उसमें देखने के लिए मिलेंगे. And let me show my screen. Ma'am, our university doesn't has it.
Scopus access. That's why we said Which university you are in? University of Lucknow. Okay. Is it visible? Is my screen visible? Yes, ma'am. It is completely visible from our end. Okay, okay, okay. Just go it with me. आप लोग शायद जामिया से भी एक्सेस कर पाएंगे. अगर आपको करना है तो आप एक बार करके देख सकते हैं. Just do it with me. Just type on Google Map My Access Jamia Millia Islamia, or you can just type Jamia. Is my screen visible? I guess my screen is visible, right? Yes, yes, Just completely a, visible. just a second. I guess it is visible right now. The whole screen is visible right now, right? Yes, yes, perfect. If all of you have opened it, Map My Access, you can click here, Map My Access Jamia Millia Islamia. It will be redirected to this page. As scholars, we must help each other. So आप लोग अगर इससे कर पाए तो it is good. आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा. यहाँ पर there will be a you will see a login option here. Just click on that and go for faculty login, not for student login, but for faculty login. It is just a shortcut that I am sharing it with you all. See if you can do it. And for the faculty login, if you will do the faculty login, it will redirect you to the to one of your Gmail IDs. You can select any of your Gmail IDs and then you can just log in. I hope it is clear. Let me know how many of you have done it. Yes, ma'am. It's going. Faculty login हो गया सबका? अगर किसी के पास एक्सेस नहीं है तो वो डन Yes, मैम. ma'am. Thank you, ma'am. हाँ, तो इन केस अगर नहीं है आप लोगों के पास, आप लोग ये कर सकते हैं. I don't know how much ethical it is, but Ma'am, for the please sake, repeat the site name. sorry. But for the sake of researchers community, I am sharing this. So you will get this page. Now coming, not wasting the more time, you will get this. You will get a lot of journals from here. Right. Now coming to Scopus. आ जाइए सबसे नीचे last second line में we have Scopus. You will click the option view. हो गया ये सबका, view पे click किया आप लोगों ने? Is it visible? Yes, ma'am. So just go on, search the documents. Now coming to search the documents, if you have area, now we'll do the we are doing the extraction of data. कि हमें data अगर हमारे पास है, हमें चाहिए for let's say we have the area of mental health of teachers. Last मैंने यही कर रखा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे. If we have data, if we need data for mental health of teachers, so we'll just type mental health of teachers. Right? Just click on search tab. So you will find, I guess 12,000 something papers will be there. सब लोगों को समझ में आ रहा है? Am I clear? Is it visible to everyone? आप लोग सब साथ में कर पा रहे हैं? Of course, we are doing, ma'am. Okay, thank you. So I now, want to know how can I log in Map My Access in Jamia Millia Islamia? Turbi, I'll tell you later. Okay. बाद में बताती हूँ. Because अभी हम लोग बाकी सब लोग आ गए हैं कि किसी और को भी एक बार पूछना है? Just go to Map My Access. Just write Map My Access Jamia in Google Scholar. Just I go. did it. हाँ, यहाँ पर लॉगिन के सेक्शन में आपको फैकल्टी लॉगिन में जाना है.
अच्छा, And faculty login में it will redirect you towards to your any one of your Gmail IDs. Just click on that. You will be redirected to this page. Right? Now coming to Scopus. अब हम Scopus पे आ गए हैं. Scopus पे we have typed mental health of teachers. सबका हो गया ये. I guess I am clear, loud and clear to everyone, to all of you. Yes, ma'am. You may proceed. Okay. Now we have 12,505 documents. अब क्या ये हमारे लिए I want the audience to be more vocal. क्या 12,505 डॉक्यूमेंट्स फर्स्टली सारे हमारे काम के होंगे? इज इट सो? और क्या हम 12,500 के करीब पेपर्स पढ़ पाएंगे खुद से? इज इट सो? इन दोनों क्वेश्चंस के क्या आंसर्स होंगे अपने अकॉर्डिंग? आप लोग कोई भी वन ऑफ यू में वॉलंटियर एंड आंसर. Many of the scholars are responding in a chat box that no, ma'am. Okay. Let me see. No, not possible. No. Thank you. So, yes, अब हमें क्या करना होगा कि 12,500 जो we have to narrow them, we have to squeeze them. और वो squeeze हम किस तरीके से करेंगे? We have to like exclusion criteria से we have to exclude some of the articles, we have to include some of the articles. Now how will we do it? सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पे देख रहे होंगे, वी हैव these options of refining research, refining our search. अब हमारे पास 12,500 तो डॉक्यूमेंट्स आ गए एंड वन पेज पे लेट्स सी वी हैव ओनली 10 आर्टिकल्स. ठीक है, तो अगर हम इन 10 आर्टिकल्स का ही पढ़ें, 10 आर्टिकल्स को एक बार स्टडी करें, तो फर्स्ट इज एसोसिएशन बिटवीन डेमोग्राफिक फैक्टर्स एंड मेंटल हेल्थ आउटकम्स अमंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन साउथ ईस्ट ऑफ चाइना. Now let's say I personally want to do a study on India only. Now how will I exclude this particular paper? I will let you know this. Second पे आते हैं, the impact of emotional labor on mental health of vocational college teachers in China, the mediating role of occupational identity and moderating role of teacher-student relationships. Now second is, let's say my second parameter is I just want to look into only school teachers. Now how will I exclude this because it deals with college teachers? ठीक है. Third is, this will I'll also teach this. Third is from family to school, the dual protection of father-child relationship and teacher-student relationship on children's mental health problems. This is a kind of paper that is that would be of my like ये मुझे काम का होगा, तो मुझे इसको रखना है. ठीक है. So how will I include this? Let's say, ठीक है, no healthy schools without healthy teachers. This is again is dealing with school and teaching, so I'll include this. Among university teachers, so I'll exclude this. Now coming, अब ये हम किस तरीके से करेंगे? देखिए हमने 10 पेपर देखे, उसमें से 3-4 हमारे ऐसे ही हमने निकाल दिए कि काम के नहीं है, लेकिन मैनुअली इट विल नॉट बी पॉसिबल कि हम मैनुअली एक का पढ़ते रहें डॉक्यूमेंट और मतलब टाइटल एंड हम उनको रिमूव करें. So we are coming to the refined search. Now let's say just come to the year. Now let's say it has two options, range and individual. Now let's say कुछ एक ऐसा साल हुआ, for example post COVID, like 2020 या 2021 से mental health पे ज्यादा काम करने लग गए हैं हम लोग, मतलब schools में ज्यादा काम हो रहा है, happiness curriculum और ये सारी चीजें आ रही हैं. So I want to see for a particular year, so I will work on individual. कि let's say मुझे 2020 का देखना है कि 2020 में कितने डॉक्यूमेंट्स छपे थे, तो हम वहां पर जाएंगे. अगर हमें ऐसा नहीं करना है, we want to have a range कि इतने ईयर से इतने ईयर तक कितने पेपर छपे, तो वो हम जाएंगे इसमें. And now we'll write from and to. Let's say अभी 2026 चल रहा है, so I want to see papers from back 10 years. So I'll write 2016 to 2026. ठीक है, 2026 अभी जितना भी है, तो ये पिछले 10 साल का मुझे पेपर लिखना है, पेपर देखना है कि कितना हुआ है पिछले लास्ट 10 years का. उसके लिए इफ आई एम राइटिंग दी पेपर, सी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस अभी हम पहुंचे नहीं है उस पर, लेकिन हम क्यों करते हैं?
चीजों की वजह से करते हैं. Am I getting some? अगर आप लोग कुछ मैसेजेस लिखें चैट बॉक्स में तो प्लीज लेट मी नो. मतलब आप म्यूट करके आप बोल सकते. द स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू मी. हाँ, तो वे वाज आई कि हम किस तरीके से इसको वो कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू दी 2016 एंड 2026, जस्ट प्रेस दिस ये ब्लू बटन, ब्लू आइकन. सो नाउ यू विल सी दैट हमारे जो आर्टिकल्स थे 12,000 से 8,500 हो गए, 8,500 के लगभग हो गए, 8,345 आर्टिकल्स हो गए जब हमने ये अलग कर दिया, ये एरिया, ये हमने डिलिमिट कर दिया आर ईयर. नाउ कमिंग टू सब्जेक्ट एरिया. सब्जेक्ट एरिया, सिंस mental health relates to sciences and psychology, right? So we can just click social sciences and psychology. और भी आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के अंडर भी ये लाई करेगा तो आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं. ठीक है, जस्ट लिमिटेड टू, बिकॉज वी डू नॉट हैव टू एक्सक्लूड. यहाँ पे एक एक्सक्लूड का भी ऑप्शन है, but we do not have to exclude. We have to limit the articles to social sciences, to psychology, to arts and humanities. अब हमने ये कर दिया, लिमिट कर दिया, तो we'll find that बिल्कुल आधे हो गए. 12,500 से 8,500, फिर 8,500 से पूरे 4,900 something आ गए. Now we have to look into the document type. What's the difference between limit and exclude here? सी देखो, लिमिट का मतलब है कि हम चीजों तक लिमिटेड रह जाएंगे, राइट? जैसे कि हमें हमारा जो ये मेंटल हेल्थ का एरिया है, देखो आप खुद सोचो, मेंटल हेल्थ का एरिया कहाँ कहाँ किस किस एरिया में किस किस फील्ड में लाई कर रहा है. ये साइंस की फील्ड में नहीं लाई करेगा हमारे अकॉर्डिंग, हम बिकॉज वी आर डीलिंग विद स्कूल्स एंड टीचर्स, सो इट विल लाई इन द एरिया ऑफ सोशल साइंसेस. तो वी हैव लिमिटेड दिस, वी हैव लिमिटेड 8,000 आर्टिकल्स टू द एरिया ऑफ सोशल साइंसेस. तो लेट्स से 8,000 में से जो सोशल साइंसेस वाले थे वो हमारे पास लिमिट होके आ गए हैं, बाकी सब एक्सक्लूड हो गए. अगर आप एक्सक्लूड लगाते यहाँ पर, लेट्स से सब्जेक्ट एरिया में हम शो ऑल करके हमें एक्सक्लूजन पे लगाना होता, तो हेल्थ प्रोफेशंस, कंप्यूटर साइंस, ये सबको एक्सक्लूड करते. बट हमें कोई जरूरत ही नहीं है एक्सक्लूड करने की, बिकॉज जब हमने लिमिट कर दिया तो वो अपने आप ही लिमिटेड हो गए. एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Now coming to document type. डॉक्यूमेंट टाइप में सबका इट इज वेरी मच सब्जेक्टिव. हो सकता है किसी को आर्टिकल्स देखने हो सकता है किसी को बुक चैप्टर्स देखने हो सकता है किसी को बुक भी देखनी हो. तो वी कैन जस्ट लिमिट इट टिल टू द आर्टिकल्स. अभी के लिए आई एम लिमिटिंग इट टू द आर्टिकल्स. तो अगेन लिमिट टू द आर्टिकल्स. अब हमने आर्टिकल्स पे आ गए तो फिर से कम हो गए हमारे पास 3,853. कमिंग टू दी लैंग्वेज. अच्छा, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. स्पेनिश चाइनीज में करोगे तो हो सकता है आपके पास वो वाले स्पेनिश चाइनीज लैंग्वेज वाले भी आ जाए. इट कैन बी यूज्ड इन दी country where in abroad where you are using such a language, you know Chinese, you know Spanish, you can use this option, but for India we are using English only. इसमें भी शो ऑल कर देते हैं. देखिए इसमें कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, जो अगर आपको कुछ चाहिए पेपर्स तो आप उसमें रख सकते हैं, अदरवाइज लिमिटेड टू इंग्लिश. ठीक है, अब इंग्लिश में भी थोड़े और कम हो गए, 300 के अराउंड और कम हो गए. कीवर्ड्स. नाउ कीवर्ड्स का बहुत ज्यादा रोल आता है इसमें, बिकॉज देर आर मेनी कीवर्ड्स. आप बहुत सारी कीवर्ड्स आप सेलेक्ट करते करते थक जाएंगे. देर आर मेनी कीवर्ड्स. तो आपको जो सही लगे, जितने आर्टिकल्स आप करना चाहते हैं, कीवर्ड्स अगर आपको सही लग रहा है आपके अकॉर्डिंग, तो आप उनको उसको प्लीज सेलेक्ट कीजिए. बिकॉज देखिए हमें क्यों करना है, हमें नैरो डाउन करना है, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल्स को नैरो डाउन करना है, लेकिन हमें इतना भी नैरो डाउन नहीं करना कि वो आर्टिकल्स ही ना बचे. So we have to select keywords अगर आपको ठीक लग रहा है तो. So we are dealing with mental health, we are dealing with humans, male female कर सकते हैं select और नहीं भी कर सकते, because you can see mental health on females, you can see mental health on males, male teachers. क्या हो रहा है? We are not looking into the child right now, as we have mentioned the mental health of teachers. We can look into the psychology, we can look into the teacher. अपने आप इसमें जो भी आपका मन करे आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं. इन दैट केस मेजर क्लिनिकल स्टडी भी अगर किसी ने किया तो वो हो सकती है. टीचर्स हो सकता है, डिप्रेशन हो, COVID-19 भी यू कैन सेलेक्ट. एज मेनी एज कीवर्ड्स यू वांट टू सेलेक्ट, यू कैन सेलेक्ट. अभी के लिए आई एम लिमिटिंग इट to see the paucity, as we have the paucity of time, so I am just limiting it to these keywords.
अब देखिए कितने हो गए हैं, और थोड़े कम हो गए हैं, 2000 के करीब आर्टिकल्स हो गए हैं हमारे पास। नाउ कंट्री और टेरिटरी, इफ अच्छा अब एक बार मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ, आई हैव टू डू सम डिस्कशन। हाँ, सो इज इट पॉसिबल कि हमने जो आर्टिकल्स अभी सेलेक्ट किए हैं वो हम पढ़ पाए खुद से? इज इट पॉसिबल? या हम बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं? तो आप मुझे एक रीजन बता सकते हैं कि हम बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस अगर किसी ने पढ़ा है, बिकॉज वी हैड दी फ्लायर्स, आई गेस कल हमारे मतलब प्रशांत जी ने शेयर किए हैं। सो अगर आप लोगों ने पढ़ा हो उसमें बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, सो और फिर उसके बाद आप गूगल पे गए हो कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, सो इज देयर एनी हम करते क्यों हैं? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? Anyone? Atul, would you like to speak? I guess analysis between different database. Or Shraddha? Good. Trend analysis, good. अच्छा, अब ये trend analysis क्या होता है? चलो, let me answer this. देखिए, जब हम trends and pattern detect करने के लिए, good, Shipra, good, finding gaps in literature, ठीक है। अब देखिए हमारे पास लेट्स से अभी हमारे पास हमने देखे 2000 के करीब आर्टिकल्स आ गए हैं। नाउ क्या वी एज रिसर्चर्स डू वी हैव टाइम कि हम एक एक आर्टिकल्स पढ़ें, एक एक आर्टिकल पढ़ें एंड उसमें से गैप्स निकालें? डू वी हैव दिस टाइम? एंड इफ लेट्स से इफ आई हैव दिस इंक्विजिटिवनेस कि मुझे पता करना है कि मेरे पास जो 2000 आर्टिकल्स हैं उसमें कौन सा ऐसा ऑथर है जो फ्लरिश कर रहा है, नो इट विल बी अ टाइम टेकिंग टास्क। गुड। उसमें से कौन सा ऐसा ऑथर है जो फ्लरिश कर रहा है, या कौन सी कंट्री में ज्यादा उस टॉपिक पे लेके कौन सी कंट्री में ज्यादा रिसर्च हुई है, या कौन सी कंट्री में ज्यादा पेपर्स पब्लिश हुए हैं। सो इट विल बी अ ट्रेंड एनालिसिस, इट विल हेल्प अस इन ट्रेंड एनालिसिस, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस जो हम करेंगे, लेकिन I guess time is short for that. So अब आ जाइए, let me share the screen again. Now we had this 2222 documents which were found. Country का मैंने आपको बताया, if we have to see, if we have to see कि हमें कौन सी कोई एक स्पेसिफिक कंट्री को सर्च करना है, के लिए सर्च के आर्टिकल्स को सर्च करना है, तो वी कैन जस्ट सेलेक्ट द कंट्री। और इफ अगर हमें ट्रेंड ही कंट्री वाइज देखना है कि कौन सी कंट्री फ्लरिश कर रही है, कौन सी कंट्री नहीं कर रही है, सो हम इसको जस्ट कीप इट एज इट इज, ठीक है। कमिंग टू दी सोर्स टाइप में यू कैन सेलेक्ट, देखो वैसे भी कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बुक सीरीज है और जर्नल है, तो यू कैन जस्ट लीव इट एज इट इज। सोर्स टाइटल में ये है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर, देखो इसमें हम वो भी कर सकते हैं, नॉट जस्ट कि हमें ट्रेंड देखना है, अगर हमें कोई पर्टिकुलर जर्नल देखना है या कोई पर्टिकुलर सोर्स टाइटल देखना है जर्नल का, अगर हमें वो पता है, तो हम ये देख सकते हैं कि कौन सा जर्नल है, उसमें कितने पेपर्स पब्लिश हुए हैं, या में ये नहीं करना कि बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर लिटरेचर रिव्यू एंड फॉर सिस्टमैटिक एनालिसिस। नाउ कमिंग टू ऑथर नेम, पब्लिकेशन स्टेज से भी हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि फाइनल में हो या आर्टिकल इन प्रेस हो, तो अगर आपको है तो यू कैन सेलेक्ट इट, अदरवाइज अभी फॉर द लिटरेचर रिव्यू वी डोंट नीड इट, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक्सपोर्ट फिल्टर काउंट्स। आई वांट मैसेजेस, अगर सब लोगों को दिख रहा है, आई वांट यस इन द चैट बॉक्स, अगर सब लोगों को यहाँ पे दिख रहा है एक्सपोर्ट फिल्टर काउंट्स, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यस, गुड। चलो, नाउ क्लिक ऑन दिस एक्सपोर्ट फिल्टर काउंट्स, यू विल फाइंड
कि आपका कुछ ऊपर डाउनलोड हो रहा है, यू विल फाइंड दिस export refined values. Just download it and just open it. आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर योर क्वेरी में यू विल फाइंड इट कि ये आपके सारे के सारे जो भी आपने लेफ्ट हैंड साइड में रिफाइन योर सर्च में जो भी आपने कीवर्ड्स डाले हैं, जो भी नेसेसरी है, व्हाई इज इट नेसेसरी, आपने देखे होंगे बहुत सारे पेपर्स. लेट मी सर्च इट. मैम रिपोर्टिंग के लिए जब हम मेथोडोलॉजी लिखते हैं, हाउ वी फिल्टर आउट आवर डेटा. वेरी गुड शिप्रा. बहुत उस चीज के लिए हमें मैं एक बार वही सर्च कर रही थी कि अगर मेरे पास एक पेपर पड़ा है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, आप लोगों से कीवर्ड्स लर्न रहेंगे या फिर हमें मैन्युअली कहीं लिखने पड़ेंगे जो हमने अभी सर्च किया, अभी हमारे पास आए हैं. अगर आपने अभी क्लोज कर दिया तो यू विल फाइंड इट इन समरी, फिर आपको दोबारा से वो प्रोसेस करना पड़ेगा सारा. तो इससे बेटर है कि ये जो एक्सपोर्ट समरी काउंट है, आप वो समरी काउंट एक्सपोर्ट कर लें एंड यू विल फाइंड इट हियर. सारा आपको मिल जाएगा पूरा कि कहाँ से आपने कौन से ईयर तक लिमिट किया था, सब्जेक्ट एरिया क्या था, सब्जेक्ट एरिया सोशल साइंसेस, साइकोलॉजी, क्या क्या लिमिट किया, कौन से कीवर्ड्स लगाए, एवरीथिंग इट विल शो यू. तो ये आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके अपने आर्टिकल में, अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस पे, तो यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड देन फ्रेज इट, पूरा फ्रेज कर डेट तक हमने लिमिट किया था. यू कैन डू इट. बेनिफिशियल फॉर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया. गुड. यस यस श्रद्धा. जो हम प्रिज्मा फ्रेमवर्क लगाते हैं हम उसकी फिर कभी बात करेंगे, अभी तो शायद पॉसिबल नहीं होगा. अच्छा चलिए, ये हमने कर लिया एक्सपोर्ट फिल्टर काउंट्स. राइट नाउ कमिंग टू दी फ्रंट पेज, जो हमने एकदम हम जहां पर काम कर रहे थे, जहां पर डॉक्यूमेंट्स लिखा है, यहाँ पर आई गेस कर्सर आप सबको दिख रहा होगा. यहाँ पर आप एक्सपोर्ट पे जाएंगे. एक्सपोर्ट पे आपसे साइन इन और क्रिएट अकाउंट मांगेगा, आप साइन इन कर दें. एक सेकेंड. आई गेस यहां से आपको साइन इन एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक्सपोर्ट होने में इशू कर रहा है. आई डोंट नो व्हाई. हाँ हो गया. ठीक है, आप पहले ही साइन इन कर लें. दोबारा ये साइन इन मांगता है. अब देखिए ये प्रोसेस हमें दोबारा से करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव 12,000 अगेन 505 डॉक्यूमेंट्स. तो हमें रेंज एक बार दोबारा से लिखनी पड़ेगी 2016 से 2026 बिकॉज एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो ये हमसे दोबारा मांगता है. ऑथर नेम हमें करना नहीं है, साइकोलॉजी, सोशल साइंसेस, आर्ट्स हैं, लिमिट 2 करना है. दोबारा से सब लोग कर लीजिए एक बार आर्टिकल्स. अभी बस मैं आप तरीके से करते हैं बिकॉज उसमें थोड़ी सी थोड़ा चैलेंजिंग तो क्या, बस थोड़ा उसमें हमें कॉन्शियस होके वो करना पड़ता है. अभी के लिए मैंने 4 ही कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं फॉर नाउ बिकॉज आई डोंट वांट टू ड्रैग इट. ठीक है, बाकी सब लैंग्वेज इंग्लिश. ठीक है, एक्सपोर्ट फिल्टर काउंट्स का मैंने आपको बता दिया था. वो हम वैसे हम कहीं यूज नहीं करेंगे बट हम वी कैन यूज इट इन दी बिब्लियोमेट्रिक पेपर व्हेन वी आर राइटिंग दी पेपर. ओपन एक्सेस का भी मैंने इसमें एक ऑप्शन लगा दिया कि ऑल ओपन एक्सेस. आई वांटेड ऑल ओपन एक्सेस. सो मेरे थोड़े और डॉक्यूमेंट्स कम हो गए. नाउ कम टू एक्सपोर्ट. अब एक्सपोर्ट पे आएंगे तो आप देखेंगे
CS फाइल टाइप हमें CSV दिख रहा है, RIS दिख रहा है, बिब टेक्स्ट दिख रहा है, प्लेन टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है। ये किस किस फॉर्मेट में डाउनलोड होंगे, ये वो फॉर्मेट्स हैं। अब क्योंकि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस जो हम आर सॉफ्टवेयर के थ्रू करने वाले हैं, वो हमें बताता है कि या उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट इज CSV, सो वी विल डाउनलोड इट इन CSV फाइल, ठीक है। CSV में हम डाउनलोड करेंगे। अच्छा, अब एक चीज और देखें, यहाँ पे दो ऑप्शंस है, ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑन दिस पेज और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम 1 to दिस। तो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम 1 to, अब देखिए इसमें लिखा है यू कैन सेलेक्ट अप टू 133 डॉक्यूमेंट्स। वो आपके में लिमिट आ जाएगी कि आप कितने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा है कि 133 डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकती हूँ और उतने ही डॉक्यूमेंट्स मेरे उसमें है, तो आई कैन सेलेक्ट दिस। अदरवाइज यू हैव टू डाउनलोड इट ट्वाइस। अगर मान लो 600 ही डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करने दे रहा है, तो यू हैव टू राइट की 1 to 600 तक आप मेरे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड, देन अनदर बैच में यू विल आस्क इट कि 601 से जो 1200 तक है वो आप डाउनलोड करो। अब ये क्या है, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू वांट टू एक्सपोर्ट, सो यू कैन एक्सपोर्ट एवरी इंफॉर्मेशन, बिब्लियोग्राफिकल, एब्स्ट्रैक्ट, फंडिंग डिटेल्स करनी है तो कर लो, अदरवाइज रेफरेंसेस वाला जो अदर इंफॉर्मेशन है उसमें एक लास्ट वाला इंक्लूड रेफरेंसेस, वो इंपॉर्टेंट होता है, बस वो डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब इसमें नीचे एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट, आप वहां से एक्सपोर्ट करेंगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा प्रिपेयरिंग 133 डॉक्यूमेंट्स फॉर CSV एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट विल स्टार्ट शॉर्टली। धीरे धीरे आपका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, यू विल फाइंड दी फाइल। अभी शायद ये टाइम ले रहा है बिकॉज ड्यू टू इंटरनेट। Is it clear with everyone? Am I clear to everyone? Yes, I think. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। आई गेस एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट हमारा ओवर हो गया है। हाँ, अभी मेरे पास एक पूरा फाइल आ गया है स्कोपस का एक्सपोर्ट वाला, वो CSV फाइल है, तो यू हैव टू कीप दैट हैंडी, ठीक है। उसको आप खोल के भी देखेंगे, अगर आप खोलेंगे तो आपके पास पूरी एक एक्सेल शीट आ जाएगी कि जितने भी आर्टिकल्स आपने डाउनलोड किए हैं वो उन सब के नाम, ऑथर के नाम, सारी चीज आपके पास वो आ जाएगी, बिकॉज वी हैव एक्सपोर्टेड ऑल दी नेसेसरी डिटेल्स। आ गया सब लोग के पास? सो वी हैव 15 मिनट्स, हम आगे जा सकते हैं, बट फॉर दैट आई विल बी नीडिंग एनी वन ऑफ यू टू वॉलंटियर, बिकॉज मेरे इस पे आर डाउनलोड हो रखा था एंड आई गेस इट इज नॉट फंक्शनल। कुछ प्रॉब्लम आ रहा था पहले भी, अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो फंक्शनल नहीं है। लेकिन आई कैन, अगर आप लोग ओपन करेंगे, सब लोगों ने डाउनलोड कर रखा है उस फॉर्म में जो आपने भरा था, उसमें प्री रिक्विजिट दे रखा था डाउनलोड R&RGUI। मोतीपुर ने कर रखा है, और किसी ने कर रखा है? अगर आप लोगों ने नहीं कर रखा है सो इट इज, हाँ शिप्रा आप बोले, कुछ बोलना चाह रहे हैं कि आपने यस कर रखा है? कर रखा है, बट फंक्शनल है या नहीं है अभी पॉसिबल, मैं क्योंकि इससे पहले ट्राई कर चुकी हूँ, बट कुछ मतलब मुझे समझ नहीं आया था। मैम आई एम एक्सेसिंग ऑन, हाँ, सो यू कैन शेयर एक्सेसिंग ऑन ऑन दी लैपटॉप। ये भी मैं शेयर करके, आज जिसने नहीं किया है तो मैं शेयर कर देती हूँ, तो डाउनलोड का मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। जस्ट ओपन दी गूगल एंड राइट पोजिट, पहले तो आप पोजिट ही लिखेंगे, पोजिट R&R स्टूडियो डाउनलोड, इस तरीके से आप लिखेंगे तो यहाँ पे यू विल सी दिस ऑप्शन, एक जस्ट अ सेकेंड, यू विल सी दिस ऑप्शन, ये वाला R स्टूडियो डेस्कटॉप सर्वर, ये सबके पास आ रहा है। यहाँ पर डाउनलोड R स्टूडियो में जाएंगे आप, तो इट विल शो यू बोथ इंस्टॉल R एंड इंस्टॉल R स्टूडियो। तो ये आपको दोनों करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल R एंड डाउनलोड एंड इंस्टॉल R स्टूडियो डेस्कटॉप, ये आपको दोनों करना है। डेस्कटॉप पे इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, if I can show you, just a second.
ये installed है, but it is not working for me. Let me see if it works. देखिए जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो you will see a space like this. User interface will be like this. Let me see if I can do it for you. Otherwise, I'll tell you the steps from here only. शिप्रा आप कर पाए join? ये ऑप्शन नहीं आ रहा पैकेजेस एंड ऑल वाला. Packages and all वाला I have version 4.5.1 in हाँ my. वही वर्जन. अभी बताइए. आपने नया डाउनलोड किया या पहले से डाउनलोडेड है? ये मेरा मैम पहले डाउनलोडेड था बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम इट वाज नॉट वर्किंग. Again same, it is the problem, it is the same problem with me, it is not working. लेकिन आप एक बार दोबारा वो करके दोबारा डाउनलोड कीजिए, एक बार देखिए. Our version is 4.6.0. जिसने नहीं इंस्टॉल किया है प्रोबेबली उनके लैपटॉप में हो जाए. देखिए मेरे में आ रहा है लोड फेल फॉर बिब्लियोमेट्रिक्स इन लोड नेम स्पेस. सो देयर इज सम इशू विद दिस इन माय लैपटॉप, बट आप लोगों के में हो जाएगा. अगर कोई स्क्रीन शेयर कर पाए तो आई लेट यू नो दी स्टेप्स. Mr. Motibur, I'd like to request you, please share your screen. Mr. Motibur Rahman. Okay, sir. Ma'am, you can brief. I can start trying. ओके शिप्रा, जस्ट आप कह रहे हो आप में ये लोड पैकेज वाला आ नहीं रहा और आपने पहले इंस्टॉल किया ना, इसीलिए मैं रुक गई. बिकॉज मेरा भी ये पहले का ही But वर्जन I'll start trying. If it works, I will hopefully see. ठीक है, आप स्टार्ट कर दो. बिकॉज आई गेस आई हैव अ लिटिल लेस टाइम. तो चलो लेट मी शेयर स्टॉपिंग शेयर दी स्टॉप प्रेजेंटिंग. आप प्रेजेंट करो. Ma'am, it's taking time, a little time. अच्छा, कोई और? If anyone else could have. I can join use via laptop. I will try. डाउनलोड हो रखा है? इज इट हैव यू डाउनलोडेड? डाउनलोड हो रखा है बट स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी. यू कैन टेल. आई विल गाइड इट. मैम क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? I guess some of the participants they have joined it later. आप प्रशांत जी आप ग्रुप पे शेयर कर देंगे क्या लिंक एक बार दोबारा से? Link has already been shared. Okay, sure. I'll share that. Some of them have joined it later.
सुरभि टाइम लग रहा है, so can Motibur share his screen? I have shared my screen. Is it visible? Motibur Rahman is Motibur has sharing. done it, I guess. Surbhi ji, please stop your screen because Motibur is already sharing his screen from his end. And ma'am, he's from Assam. I am happy Okay. that across India we are here. Okay, okay. सुरभि प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। हाँ, क्योंकि आपने शायद डाउनलोड नहीं किया है, तो या डाउनलोड हो गया है तो आई लेट यू नो। अगर इंस्टॉल आप लोग कर चुके हो, exe फाइल आई होगी, आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, वहीं से जो पोजिट वाला मैंने शो किया था, अब आपने खोल के इफ यू हैव डन इट। हाँ, मोतीबूर प्लीज गो टू पैकेजेस, गो टू पैकेजेस, यहाँ पे RGUI के बाद जो आपका गो टू पैकेजेस, यस। नाउ कम टू इंस्टॉल पैकेजेस। आप लोग साथ साथ में सब लोग कर सकते हैं अगर आपने फोन से ज्वाइन किया हुआ है, सो यू कैन डू इट साइमल्टेनियसली ऑन इंस्टॉल पैकेजेस पे। आप जाएंगे तो आपके पास आएगा क्रैन मिरर, प्लीज सेलेक्ट अ क्रैन मिरर, सो जस्ट सेलेक्ट इंडिया भुवनेश्वर, as we are in India, not Delhi वाला, but we can select it Bhubaneswar, क्योंकि भुवनेश्वर वाले में कुछ options हैं जो we can do it easily. हाँ, just select and do okay. Okay. It will take some time. ये थोड़ा cumbersome process है, थोड़ा time लेता है, but once you are you get handy with it, तो easily हो जाता है। थोड़ा सा I guess time लगेगा इसमें। Screen, हाँ, अब इसमें जाके टैन मिरर नीचे जाके बिब्लियोमेट्रिक सेलेक्ट कीजिए, नीचे जाना पड़ेगा इसमें। हाँ, ऊपर ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर ऊपर, सी पे, वी आर ऑन सी, ऊपर 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 ऊपर, हाँ, बिब्लियोमेट्रिक्स, नीचे, थोड़ा नीचे 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 नीचे। ये इसमें थोड़ा इशू आता है कि इसमें कर्सर नहीं जाता है, एंड इसमें आप मतलब वैसे स्क्रॉल करके भी ऊपर नीचे नहीं कर पाते हो, सो यू हैव टू मैन्युअली फाइंड इट कि कहाँ पर है बिब्लियोमेट्रिक्स। ये रहा, here it is, yes, ऊपर ऊपर ऊपर, yes, हाँ, not bibliometrics data, we have to just, हाँ, bibliometrics only, just click on it. Okay, yes, would you like to use a personal library instead? Yes, yes, so it will take some time अभी होने में, एंड लास्ट आपको दिखेगा, यू विल फाइंड कि बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, एंड लास्ट में इट विल शो MDS सम्स चेक्ड। आने दीजिए अभी ऑप्शन थोड़े। Ma'am, after India, Bhubaneswar, what we have to choose? इंडिया भुवनेश्वर के बाद एक और आपके पास लिस्ट आएगा, उसमें नीचे जाके यू हैव टू चूज बिब्लियोमेट्रिक्स। Will that take time? Ma'am, will that take time? हाँ, इट विल टेक सम टाइम। आपका हो गया है क्या ये मोतीबूर जी, या इट इज कुछ आपका ऐसा हो रहा है कि कर्सर वो कर रहा है? बिकॉज मुझे कर्सर प्लेन दिख रहा है। किसी का हुआ अभी तक? Ma'am, in my it is showing warning failed to download, and that is not. वही वही वही, आपको आई गेस दोबारा से डाउनलोड, पूरा प्रोसेस दोबारा इसका सारा Okay, टेस्ट को ma'am. करना पड़ेगा। हाँ मोतीबूर जी, ये हो रहा है अभी, इसको होने दीजिए। आर यू am I audible to you मोतीबूर जी? कैन वी Yes, ma'am. टॉक? आप एक बार या तो म्यूट अनम्यूट करके जी मैम। फिर आप स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, इफ वी कैन टॉक, so that I'll be able to know on. Yes, 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 see, packages are installing, getting installed.
होने दीजिए, अभी होने दीजिए। इट टेक्स सम टाइम, बट इसमें इसके बाद जो हमारे पास आता है वो दैट इज थोड़ा इजी। हो गया मोतीपुर जी? अच्छा नहीं, अभी हो रहा है, हो रहा है। Ma'am, in the meantime, can you tell any books or YouTube or a research paper regarding how to do a bibliometric analysis? Just a second, let me search for it. It is in my laptop only, I guess. आई गेस अब हो गया है या नहीं हुआ है मोतीपुर जी? मैम लोडिंग हो It is रहा है। ongoing still. स्टिल ऑनगोइंग। चलिए तब तक मैं स्क्रीन शेयर कर लूं क्या? बिकॉज आई कैन शेयर। अब ये होने ही वाला है गेस। शिप्रा जी ने पूछा था क्या कि वो कोई पेपर्स वाला? हाँ, I have the paper, but I'll have to show that to you कि किस तरीके से करते हैं. So screen sharing, I guess, will not be possible. I have found the paper. I'll let you know later on. Don't worry. Or else I'll share the paper, or else you can go to the you can search for the bibliometric papers. And अभी शायद वो नहीं है, वैभव जी उन्होंने बहुत सारे papers publish किए हैं. He is from जामिया मिलिया इस्लामिया only. अगर आप जान रहे होंगे, because he is from Yes, the ma'am. हाँ, so you can just ask him. उनके बहुत सारे papers bibliometric analysis पे published हैं. Ma'am, I wanted to know if I have to learn it and if I miss a step in any paper or any YouTube video that can guide me again. See, I have not learned it from, or I have not basically मैंने ये सीखा YouTube से नहीं है, bibliometric analysis and writing the paper. तो वो तो ये मतलब वो आपको YouTube के लिए तो एक बार आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा. बाकी कोई बुक या कुछ ऐसा भी मैंने ज्यादातर नहीं पढ़े, बट आई हैव लर्न अबाउट प्रिज्मा. हो गया है गैस ना? हाँ, अब हो गया है.
आई हैव लर्न अबाउट प्रिज्मा फ्रेमवर्क, तो वो मैं आपको एक बार लास्ट में बता दूंगी कि क्या क्या है उसका एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया जो हम रखते हैं, एंड देन पेपर में दिखाऊंगी. यू शुड हैव योर ओन राइटिंग स्टाइल, आपका खुद होना चाहिए, एंड पेपर देखते ही आपको समझ में आएगा. इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. आप लखनऊ से हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ पेपर इन एजुकेशन ऑन बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस. मैं नहीं कर पाई हूँ, वो एक बात अलग है, क्योंकि आई एम इन दी फाइनल ईयर, वो नहीं हो पा रहा है मुझसे, लेकिन स्टिल इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट. चलिए देखिए मोतीपुर जी, अब नाउ गो टू दी पैकेजेस अगेन. अब देखिए लास्ट में इस तरीके का आना चाहिए, द डाउनलोडेड बाइनरी पैकेजेस आर इन सी एंड डाउनलोडेड पैकेजेस. हाँ, now go to load package. First of all we have to install the packages. Install the package में हमें दो चीजें करनी थी. एक तो हमें कंट्री सेलेक्ट करनी थी जिसमें हमने इंडिया भुवनेश्वर सेलेक्ट किया था, दूसरे वाले में क्रैन वाला सेलेक्ट करना था मिरर, जिसमें हमने बिब्लियोमेट्रिक सेलेक्ट किया था. Now it has already installed the packages. Now we have to load the package. You have to load the package. Load package. Click on load package. Yes. Click on bibliometrics. ऊपर first third वाला, third one. Yes, bibliometrics. Click OK. हाँ, so we have got this. To start with the BiblioShiny app. Now, अब हमने ये सारा जो किया, we have downloaded both the apps. We have uploaded the packages. We have installed the packages. ये हमने क्यों किया? To navigate, this will navigate us to a page, a web page called as BiblioShiny. ठीक है, अब BiblioShiny में हमारा bibliometrics analysis होगा. Write, मोतीपुर जी, just write the same BiblioShiny space, यहाँ पर लिखिए आप, जो कर्सर है जहाँ पर, you have the cursor, yes, right now, BiblioShiny space, bracket open, bracket close, just write it, yes, BiblioShiny space, give it a space, yes, bracket open, bracket close. हाँ, एक ही स्पेस है ना, दो तो नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए, एक ही स्पेस होना चाहिए बीच. सिंगल स्पेस. Yes, ma'am. I guess we have a single. You have given just a single space. नहीं, दो दे दिए क्या? Just delete one space. नहीं, that is single. That was अच्छा, single. एक single space है, single space है. Now, हाँ, now click enter. Yes. Now it will navigate you to a web page. अभी देखिएगा. It will navigate you to a web page, and it will be of BiblioShiny. मैम ये गूगल क्रोम में नहीं ओपन होगा क्या? ओपन नहीं हो रहा क्या? मैम फायरफॉक्स में थोड़ा इशू होता है, गूगल क्रोम में इजी होता है. It's taking a It is taking some time.
ना टाइम लेता तो नहीं है. इज इट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम मोतीपुर जी? मैम इसके बारे में तो पता नहीं कैसे होता है. क्या ये गूगल क्रोम में ओपन हो सकता है मैम? और किसी का हुआ? Is there anyone who was doing it and has done it? I have done it. Okay, you have done it. Prashant ji, you have done it. एक बार will you share your screen? आपका खुल गया है बिब्लियो शाइनी? आपको दोबारा से लोड करना पड़ेगा. दोबारा से क्या किया आपने मोतीपुर जी? क्लोज कर दिया था उसको. अभी डाउनलोड हो रहा है कुछ जिप फाइल. मिरर कर लिया क्या आपने? अब प्रशांत जी आप शेयर करेंगे क्या एक बार? आई जस्ट हैव टू लाइक ब्रीफली शो कि हम क्या कैसे उसको डाल सकते हैं एंड देन हाउ वी कैन डू इट. आप शेयर कर लीजिए एक बार अगर आपका हो Okay. गया है तो. Mhm. Motibur, can you stop sharing your screen? Is my screen visible to all? I guess it is visible, right? इट इज विजिबल बट आई गेस आप थोड़ा लो नेटवर्क. हाँ नहीं ठीक है ठीक है ठीक है. इट इज फाइन. इट इज फाइन. यस. देखिए इस तरीके का इंटरफेस हमारे पास खुल जाएगा. इज इट विजिबल टू एवरीवन? आई गेस विजिबल होगा. मुझे विजिबल है तो. नाउ अब लेफ्ट साइड में जाइए आप. एक बार इन्फो पे क्लिक कीजिए. इन्फो पे. हाँ इन्फो पे क्लिक कीजिए. सपोर्टेड फाइल्स. गो टू सपोर्टेड फाइल्स. दिस इज अ हिट एंड ट्रायल ऐप बेसिकली. मैं आपको पहले ही बता रही हूँ. वी आर जस्ट हैविंग एन ओवरव्यू. 2-3 चीजों का हम ओवरव्यू लेंगे एंड देन यू कैन जस्ट ट्राई इट. बहुत फ्रेंडली ऐप है. आप इसको मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको बहुत बार ट्राई कर सकते हैं. अलग अलग इसके विजुअल्स देख सकते हैं. एक बार नीचे जाइएगा प्रशांत जी. सो देखिए अब इसमें हमने हाँ हाइड करके नीचे जाइएगा. जो टेबल बनी है ना प्लीज जस्ट जूम ऑन इट अगर आप कर पाए तो. या फिर हम खुद भी अगर लैपटॉप इफ वी आर लुकिंग इट लाइक इफ वी हैव जॉइंड इट फ्रॉम दी लैपटॉप्स वी कैन जस्ट जूम इन. मत कीजिए अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं वरना बहुत ज्यादा वो हो जाएगा. हाँ वापस चले जाइए कोई बात नहीं. जस्ट जूम इट. बस थोड़ा सा इसका ये इंट्रोडक्शन देना था मुझे. ये टेबल में अगर आपके पास खुल जाए तो आप देखिएगा कि इसमें दे रखा है कि क्या आपका जो है सोर्स है. जो हमने जैसे लिया था हमने लिया था स्कोपस से. we had this we have a database from Scopus. अब Scopus का आप देखिए इसमें क्या दे रखा है. फॉर्मेट क्या होता है BibTeX और CSV. ठीक है. ऑल एक्सेप्ट साइटेड रेफरेंसेस. तो एक्सपोर्टेड मेटाडेटा क्या हटा देता है ये. साइटेड रेफरेंसेस हटा देता है. नाउ रिकमेंडेड फॉर्मेट क्या है इसका Scopus के लिए. CSV. अब इस ये क्यों दिखा रही हूं मैं आपको टेबल कि जब भी हम किसी भी डेटाबेस को सेलेक्ट करें वेब ऑफ साइंस को सेलेक्ट करें स्कोपस को सेलेक्ट करें एंड देयर आर एन नंबर ऑफ डेटास तो उसका जो लास्ट में लिखा रिकमेंडेड फॉर्मेट वो आपको सेलेक्ट करना है. बिकॉज बिब्लियो शाइनी में सिर्फ वही फॉर्मेट वो लेता है. आप स्क्रीन थोड़ी अच्छा आपने नहीं की हुई है. ठीक है ठीक है. नाउ गो टू डेटा. रिकमेंडेड फॉर्मेट में डाउनलोड करें. यस जो आपका रिकमेंडेड फॉर्मेट है सिर्फ उसी में ही आपको वहां से डेटा डाउनलोड करना है जहां से हमने स्कोपस में किया था. गो टू डेटा. गो टू इंपोर्ट और लोड. गो टू इंपोर्ट और लोड. ये स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं. मतलब हाँ यस ये वाली यहां तक के स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं. अब रॉ फाइल्स. इंपोर्ट रॉ फाइल्स. इंपोर्ट रॉ फाइल्स. मैं आई विल शेयर इट विद यू. तो इसमें आप ऐसे नहीं कि आप स्टेप्स लिखने लग जाओ ध्यान में नहीं दो. ये स्टेप्स मैंने लिखे हैं. शेयर इट विद यू. डेटाबेस आपका स्कोपस है. फाइल चूज कीजिए जो आपने डाउनलोड करी थी अभी. आप एक बार स्क्रीन थोड़ी मेरी तरफ से तो छोटी है. आप एक बार पूरा आपका विंडो शो नहीं हो रहा. मतलब पूरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है आई गेस.
हाँ, अभी ये जो स्कोप, अच्छा हाँ। इसमें भी देखा 2 चीजें हमारे पास। ठीक है प्रशांत जी, ठीक है। इसमें भी देखिए 2 चीजें हमारे पास टुडे में जो शो रहा है, स्कोपस एक्सपोर्ट अप्रैल 2025 एंड रिफाइन वैल्यू। सो रिफाइन वैल्यूज की हमें सिर्फ बिब्लियोमेट्रिक पेपर में जरूरत थी। जो हमने एक्चुअल डेटा जो अपलोड वो किया है, डाउनलोड किया है, उसी को ही हमें यहाँ पर अपलोड करना है। एम आई क्लियर? एक्सपोर्ट वैल्यूज वाला यहाँ पे मत अपलोड कर देना, सिर्फ वही वाला अपलोड होगा जो कि हमने अभी डाउनलोड किया है सारी फाइल्स। मेरे उसमें 1333 थी, तो वहीं पे हमने कर दिया। नाउ गो टू स्टार्ट। अच्छा, अब इसमें लेफ्ट में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। कन्वर्टिंग डेटा टू बिब्लियोमेट्रिक्स फॉर्मेट। सीएसवी फाइल नहीं डाउनलोड की थी क्या? बोलना तो नहीं चाहिए इसे। ऐसा क्यों शो हो रहा है ये? Please provide a type of content to improve the prompts for AI assistant. एक बार आप वो कीजिए, दोबारा से डालिए फाइल। ये फर्स्ट वाली फाइल ही सेलेक्ट कीजिए। हाँ, ओपन। स्टार्ट। आपका इसमें इंपोर्ट क्यों नहीं ले रहा है? Where is the right? सॉरी, हो तो जाना चाहिए था। और किसी का हुआ है? ये बहुत हिट एंड ट्रायल वाली एप्लीकेशन है। इसमें आपको बार बार हिट एंड ट्रायल मेथड से दोबारा से स्कोप से डाउनलोड करके दोबारा देखना पड़ता है एक बार। किसी और का हुआ है? Is there anyone who has done it? रिफाइन वैल्यूज नहीं, रिफाइन वैल्यूज नहीं। डाल के देख लो, ऐसे कुछ होगा नहीं। एक बार डाल के देख लो। रिफाइन वैल्यूज में हम करेंगे क्या? रिफाइन वैल्यूज में वी डोंट हैव डेटा। हमें तो एक्चुअल में डेटा का प्रेजेंटेशन देखना है कि किस तरीके से डेटा दिख रहा है। आपने फाइल सीएसवी में ही डाउनलोड करी थी प्रशांत जी? चेंज इट इनटू सीएसवी फॉर्मेट। यस, आप एक बार देख लीजिए। हाँ, दर्शिता इज सेइंग दिस। आपकी फाइल जो है वो एक्सेल में है। किसकी? प्रशांत की ना? की फाइल, हाँ। हाँ, एक बार आप देख लीजिए कि कौन से फॉर्मेट में है, क्योंकि मैंने उस समय भी जब डाउनलोड करते हुए बताया था तो बोला था सीएसवी में डाउनलोड करें। अभी भी मैंने एक बार I बताया have था कि downloaded it in हमें CSV file. प्रशांत, जो आप अपलोड कर रहे हैं वो एक्सेल वाली फाइल है। सीएसवी वो फाइल होगी, होम पेज पे अपलोड सीएसवी एक्सेल में ही ओपन होती है। बट एक बार जस्ट चेक दी फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट चेक दी लास्ट में जो लिखा होता है ना फाइल के .csv, वो है उसमें कि नहीं है? No, that is not there, but I have exported in CSV format. I have selected CSV while downloading, while exporting it. नहीं, एक बार देख लीजिए। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, यही इसी वजह से वो ओपन ही पॉसिबली ओपन ही नहीं हो पा रहा है। दर्शिता, हैव यू डन इट? विल यू बी एबल टू शो द स्क्रीन? इसमें से आप ऑल पे सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट करें। 789 डॉक्यूमेंट्स। मोती बोरजी कह रहे हैं, कह रहे हैं मोती बोरजी। अच्छा, मेरे को मैसेजेस दिख नहीं रहे हैं। नो, आई एम फेसिंग सर्टेन इशू विद द सॉफ्टवेयर। अच्छा, ओके। I have done the same process previously also, and the same अच्छा, file has been
downloaded previously. So it was, चलो एक बार देख I guess, yes. एक बार देखते हैं, अगर इन केस नहीं हो पाता है तो आई गेस वी हैव टू अरेंज अ सेपरेट सेशन फॉर इट बिकॉज टाइम इज अ लिटिल लेस फॉर मी एज वेल, बिकॉज ये थोड़ा इसको करना इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, एंड सिंस एक्सट्रैक्शन वाज द मेन फोकस ऑफ टुडे सो वी हैव डन द एक्सट्रैक्शन. आई गेस एक्सट्रैक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है मोतीपुर जी, थैंक यू. हाँ CSV आपका आज CSV फॉर्मेट रहा है जो आपने पहले भी डाउनलोड किया है, .csv. एक बार फिर से इसको अपलोड करके देखिए, ये जो अभी डाउनलोड किया है ना आपने प्रशांत जी, इसको अभी अपलोड करके देखिए उसमें. अगर ये स्टक हो जाता है कहीं पे, आई गेस Been इट done. इज, हाँ देखिए हो गया. Previous file. Hang This on. previous file it has been done. प्रीवियस फाइल, सॉरी आप क्या Yes. बोले With the प्रशांत जी, previous सुना? file it has been इट done. इज द प्रीवियस फाइल. ठीक है With चलिए, the ठीक है, previous थैंक file यू. it has done. Yes. ठीक ठीक, चलिए नाउ कम टू ओवरव्यू. देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इनकी स्क्रीन में, एक बार आप ना ये जो प्रशांत जी इसको थोड़ा सा और स्क्वीज कर सकते हैं पूरा, शायद आपने जो जूम किया था वो प्रॉपरली थोड़ा जूम आउट नहीं हुआ है. कैन यू जूम इट आउट? हाँ 100 पे कर दो इसको. हाँ बढ़ाना नहीं है, कम करो और कम करो सो दैट पूरी स्क्रीन शुड बी विजिबल. हाँ बस टू 800. अच्छा अब आप देखेंगे तो हमारी स्क्रीन पे ये विजिबल हो रहा है कि ये गो टू ओवरव्यू रुक जाइए अभी एक बार. तो ये हमारी स्क्रीन पे जो विजिबल हो रहा है, इट इज शोइंग पहले साइड में ऑथर्स के नेम, फिर हमें दिखा रहा है कि क्या हमारा ये उसका टाइटल क्या है, एंड इट इज शोइंग कि कौन सी जर्नल में है, उससे पहले ईयर दिखा रहा है. तो इट विल शो यू पूरा डेटा. कमिंग टू ओवरव्यू, कम टू मेन इंफॉर्मेशन. 2-3 चीजें इसमें मैं आपको बताऊंगी, बाकी इसमें आप लोग सब एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड है, एक बार आप दोबारा ट्राई कीजिएगा. और कोई नहीं समझ में आए इन केस तो यू कैन रीच अप टू मी एंड देन आई विल लेट यू नो. मेन इंफॉर्मेशन में जब हम जाएंगे थोड़ा टाइम लेता है ये थोड़ा वो करने में. हाँ एक बार थोड़ा ऊपर जाइए प्रशांत जी, ये DOI वाला हट नहीं रहा या क्या आ रहा है ये वाला प्रॉपरली? हाँ बट गया. यस, सो मेन इंफॉर्मेशन में यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग कि टाइम स्पैन आपने क्या लिया हुआ है. देखिए प्रशांत जी ने हो सकता है 1989 से 2026 तक के पेपर्स लिए हुए हैं, टाइम स्पैन इतना ज्यादा लिया हुआ है. ठीक है, सोर्सेज कितने हैं, डॉक्यूमेंट्स टोटल कितने हैं, एनुअल ग्रोथ रेट कितना हो रहा है, को ऑथर्स पर डॉक्यूमेंट में कितने कितने को ऑथर्स हैं एवरेज रेट पे वो बताया हुआ है. तो इट विल गिव यू अ समरी. नाउ व्हाट विल यू हैव टू डू इट, आप इसका क्या करेंगे, ऊपर जो ऐड बटन है ना, प्लस का बटन है, वो क्लिक कीजिए ऊपर राइट हैंड साइड पे ऊपर प्लस, हाँ क्लिक कीजिए. इफ यू वांट टू, क्या लिखा हुआ है, मेन इंफॉर्मेशन एडेड टू द रिपोर्ट. इफ यू वांट टू पब्लिश अ पेपर, ठीक है, और आपको उसमें ये इन्फॉर्मेशन ये टैबुलर फॉर्म में आपको चाहिए कि आपने कितने कहाँ से कहाँ तक डॉक्यूमेंट्स लिए थे, क्या क्या सोर्सेस थे, एंड यू हैव टू जस्ट शेयर इट एज इट इज. तो आप उसको उसमें ऐड कर देंगे. और लेफ्ट हैंड साइड में हम जितने भी अभी ऑप्शंस देखने वाले हैं, और मान लीजिए वो आपको ऐड करने हैं अपने पेपर में, तो आप जस्ट यू हैव टू क्लिक दैट बटन. लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन आएगा रिपोर्ट का, तो यू हैव टू जस्ट एक्सपोर्ट द रिपोर्ट. वहां से ये नीचे आपका आ रहा है डॉक्यूमेंट, नीचे और नीचे और नीचे आएगा और नीचे आएगा और नीचे आएगा. लेफ्ट हैंड साइड पे यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ रिपोर्ट. ये आ गया लास्ट में रिपोर्ट. हाँ अभी हम जाते नीचे और नीचे, आप ऊपर चले गए, एकदम लास्ट में आता है, नीचे आएगा. चलिए कोई बात नहीं, लास्ट में एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट का, उसमें हम सारे ऐड करके एक्सपोर्ट कर लेंगे. और नीचे आएगा सिंथेसिस के बाद. अच्छा इसमें अब 2 चीज और दिखाना मैं आपको चाहूंगी. कंट्रीज वाले में आ जाइए सीधा.
कंट्रीज वाले में आ जाइए, कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर्स कंट्रीज, हाँ आ जाइए, क्लिक ऑन दैट। ऊपर जाइए एक बार, थोड़ा कर्सर को राइट हैंड साइड से, हाँ हाँ। अच्छा, अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर्स कंट्रीज में हमारे पास ब्लैंक आ रहा है, तो हमें क्या करना है, राइट में जो 3 डॉट्स दिए हुए हैं, से लाइंस दी हुई है एकदम एक्सट्रीम राइट, क्लिक ऑन दैट। हाँ अच्छा, अब इसमें क्या है, लेट्स से हमें नंबर ऑफ कंट्रीज चाहिए, मेजर हमें 5 देखनी है हमें कि कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर की कंट्रीज कौन सी है, कौन मतलब किस किस में वो जो पेपर्स पब्लिश हुए हैं वो कौन कौन सी कंट्री में हुए हैं, 5 कंट्रीज देखनी है। तो लेट्स वील इसको डिलीट करके भी आप 5 लिख सकते हैं, ठीक है, 5 करेंगे, बस छोड़ दीजिए इसको, वापस आ जाइए। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द स्क्रीन, जस्ट क्लिक ऑन द स्क्रीन, हाँ वो चला जाएगा। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दैट प्ले बटन, जो प्ले बटन है ना उस पर क्लिक कीजिए, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है ये वाला, इधर ही, हाँ। नाउ इट विल रन दी एनालिसिस, जो प्ले बटन है उसको हम बोलते हैं रन दी एनालिसिस। नाउ इट विल रन दी एनालिसिस कि आपकी ऑथर की कंट्रीज कौन कौन सी है, इट विल शो इट टू यू। अगर आप वैसे करोगे तो ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, बट नाउ इफ यू आर शेयरिंग द स्क्रीन तो थोड़ा टाइम लेता है। और कोई कर पा रहा है या यू आर जस्ट लर्निंग इट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग? मनीष जी, आप कर पा रहे हैं? हाँ मैम, मैं एक्चुअली ट्राई किया था पहले, मैं भी इसी पेपर पे काम कर रहा था। तो बिब्लो शाइनी वाला उस टाइम पे यूज किया था मैम। बिब्लियो शाइनी है ये, तो आपको आता है ऐसा? ये अभी मतलब इतना नहीं आता, मैं जस्ट पेपर के लिए, मुझे मतलब मैनुअली किस चीज की थी काफी उसमें, लेकिन मुझे अभी मतलब मैं भी सीख रहा हूँ जो है। अच्छा ओके प्रशांत, हाँ हाँ चलिए हो गया, ठीक है। ये अब ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर्स कंट्रीज क्या है, देखिए ये हमारा एनालिसिस रन हुआ है, इसको अगर हमें सेव करना है, शेयर करना है, हमें अपने उसमें पेपर में डालना है, तो जस्ट ऐड इट टू द रिपोर्ट, पहले ऐड कर लीजिए, फिर हम एक बार देख लेंगे कि क्या है। अच्छा, इसमें है देखिए, एमसीपी इज मल्टीपल कंट्री एडेड टू द रिपोर्ट, हाँ एमसीपी इज मल्टीपल कंट्री पब्लिकेशंस। नाउ यूएसए में आप देखेंगे क्योंकि इसमें कोलैबोरेशन दिया हुआ है, तो ऑरेंज इज एमसीपी एंड सिंगल कंट्री पब्लिकेशन इज ग्रीन। तो आप क्लिक करिए एक बार इन दोनों के बीच के इंटरसेक्शन पे क्लिक करिए, तो प्रशांत जी ग्रीन और ऑरेंज वाले पे बीच में इंटरसेक्शन में क्लिक कीजिए, तो लेके जाइए कर्सर, हाँ देखो वही वही लेके जाओ, देखो कंट्री यूएसए, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज 24 आई गेस, है ना, तो वो शो कर रहा है कि हाँ, और ग्रीन वाले में 118। तो ये शो कर रहा है कि जो हमारे पास जितने टोटल डॉक्यूमेंट्स थे, यूएसए ने कितना, यूएसए का एक तो सबसे ज्यादा एमसीपी और एससीपी हुआ है, यानी कि मल्टीपल कंट्री पब्लिकेशन हुआ है, और सिंगल कंट्री पब्लिकेशन इसके 118 हुए हैं, एमसीपी इज 24। तो यूएसए में एक तो सबसे ज्यादा हो रहा है, तो हमने ये ट्रेंड देख लिया कि यूएसए इज ऑन दी हायर जोन ऑन दी इन द एरिया ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर्स, ठीक है। फिर यूनाइटेड किंगडम का आप देख सकते हैं कि 26 इन्होंने इस पे किए हैं, और नेक्स्ट वाले में 84 आर्टिकल्स किए हैं, 84 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 84 है 64, 84 है, तो 84 इसमें देख सकते हैं। तो इसी तरीके से वी कैन जस्ट सी एंड वी कैन राइट पेपर्स ऑन, मतलब इसी तरीके से ओवरव्यू। एंड इसमें बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, और भी एक बार जाइए तो ऑथर प्रोफाइल पे जाइए, ऑथर वाले में से एक ले लेते हैं कोई, हाँ मोस्ट रेलेवेंट ऑथर्स, इसमें और भी थोड़े ऑप्शंस है जो यू विल हैव टू एक्सप्लोर इट। ऑथर प्रोफाइल नहीं, मोस्ट रेलेवेंट ऑथर, ऑथर प्रोफाइल में तो फिर वो आपको ऑथर प्रोफाइल, एक ऑथर की प्रोफाइल दिखाएगा, मोस्ट रेलेवेंट ऑथर्स उसका आपको जरूरत भी नहीं होगी। मोस्ट रेलेवेंट ऑथर्स में ऊपर जाइए, थोड़ा ऊपर जाइए, रन दी एनालिसिस
होगा शायद इसमें भी। हाँ, पहले कॉर्नर में जाइए, कॉर्नर राइट, एक्सट्रीम राइट। अब इसमें देखिए कितने आपको नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मतलब आपको किस किस चीज का देखना है कि डॉक्यूमेंट्स और ऑथर्स में। लेट्स से 10 ऑथर रहने दीजिए, 7 ऑथर कर देते हैं बस। बैक रन दी एनालिसिस। हाँ, सो आप देखेंगे कि फोर्ड जो ऑथर है उन्होंने 7 आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए हैं, डर्लियन ने 5 पब्लिश किए हुए हैं, जेरेम ने 5 पब्लिश किए हुए हैं। तो यू विल सी कि ये कौन से हैं जो मोस्ट रिलेवेंट ऑथर्स हैं। दे हैव पब्लिश्ड एंड सर्टेन नंबर ऑफ पेपर्स, मतलब जो आपने 7 पेपर्स किए, अगर आप और पेपर करते तो यू विल फाइंड इट कि और इन्होंने पब्लिश किए हुए। ठीक है, आपने 10-15 जितने भी सेलेक्ट किए उसमें से इन्होंने 7 पेपर्स पब्लिश किए हैं, इन्होंने 5 किए हैं, इन्होंने 4 किए, मैक्स इंपॉर्टेंट वाले। सो you can add it to the report as well। ठीक है, अब इसमें एफिलिएशंस में आ जाइए, एफिलिएशंस। हाँ, मोस्ट रेलेवेंट एफिलिएशंस में जाइए एक बार ऊपर। हाँ, अब इसमें एक्सट्रीम राइट रन दी एनालिसिस नहीं, एक्सट्रीम राइट। हाँ, ऑप्शंस में अब देखिए इसमें affiliation name disambiguation, number of affiliations 10, show run the analysis। ठीक है, let it be 10। yes, so now it will show you कि अब affiliations as in कि कौन सी यूनिवर्सिटी के कितने पेपर्स जो हैं वो पब्लिश्ड हैं। एक बार 18 पे कर्सर लेके जाइए, तो लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में 18 पे कर्सर लेके जाइए, कुछ शो कर रहा है। हाँ, तो affiliation is this university and it has published 18 number of articles in the area of, don't forget the area, in the area of mental health of teachers। उसमें इन्होंने मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इन दी फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का उससे नेक्स्ट वो है कंट्रीब्यूशन है, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन का उससे कम। इस तरीके से यार हायरार्की बनी हुई है। सो यू कैन सी दी ट्रेंड कि कौन सी यूनिवर्सिटी इट इज इन दी टॉप रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर एरिया व्हाटसोएवर इट इज। आपने मेंटल हेल्थ डाला है तो मेंटल हेल्थ, आपने कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स डाला है, सिंस वी आर फ्रॉम द एजुकेशन बैकग्राउंड, और यू मे हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड, तो आप अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। नेक्स्ट नीचे कीजिए तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर कंट्रीज में जाके बस लास्ट, दिस इज द लास्ट ऑप्शन दैट आई एम टेकिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर्स कंट्रीज शायद हमने कर लिया था आई गेस, कंट्रीज वाला। हाँ, तो वी हैव सीन इट। एक लास्ट और दिखा दीजिए नीचे, कोलैबोरेशन वाले में होगा, कोलैबोरेशन नेटवर्क वाले में देखिए तो कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर में जाइए, सोशल स्ट्रक्चर या कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर, दोनों में से किसी एक में जाइए। नीचे सोशल स्ट्रक्चर में जाइए। हाँ, कोलैबोरेशन नेटवर्क, यस, कोलैबोरेशन नेटवर्क कीजिए ऊपर। एक बार कॉर्नर में एक्सट्रीम राइट रन दी एनालिसिस तो हम तब करेंगे जब हम अपने अकॉर्डिंग हमें जो चीज चाहिए वो होगा। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें कोलैबोरेशन नेटवर्क में हमें देखना है मेन फील्ड में ऑथर्स हैं। ऑथर्स के इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेशन अमंग ऑथर्स, कोलैबोरेशन अमंग कंट्रीज। देखिए तो एक बार कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, ऑथर्स, कंट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। लेट्स से हमें ऑथर्स के बीच में देखना है कि कितना कोलैबोरेशन है। ऑथर्स में आ जाइए, रन दी एनालिसिस, बाकी सब छोड़ दीजिए आप, मेथड, पैरामीटर्स और ग्राफिकल। हाँ, रन दी एनालिसिस एक बार कीजिए, रन दी एनालिसिस। हाँ, तो इसमें आप देखेंगे कोलैबोरेशन नेटवर्क में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि किस के बीच में कितना क्या कोलैबोरेशन है। फॉर एग्जांपल मेरा जो फील्ड था है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसमें लिंडा डार्लिंग हैमंड जो है, इट हैज मतलब दे हैव अ कोलैबोरेशन विद, मतलब इट इज ऑन दी टॉप मोस्ट, मतलब उनका है कि वो टॉप पे है फॉर दिस कोलैबोरेशन।
they have collaborated with many universities, they have collaborated with many authors. तो इसमें आप वो देख पाएंगे. अच्छा, एक चीज और है, जब आप लेफ्ट साइड पे ट्राई करेंगे तो अभी देखिए ये हमारे पास 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, नेटवर्क, डाइक्रॉनिक नेटवर्क, डेंसिटी, टेबल, डिग्री प्लॉट. तो ये ऑप्शंस हमारे पास और चीजों में भी आते हैं, टेबल के फॉर्म में, प्लॉट के फॉर्म में. तो इन केस आपको टेबल डालनी हो तो आप टेबल पे जाके यू कैन रन दी एनालिसिस. देखिए अब ये हमारे पास आ गया कोलैबोरेशन नेटवर्क. तो फोर्ड का देखिए किसके साथ कोलैबोरेशन है. जस्ट टेक द कर्सर टू फोर्ड, प्रशांत जी. फोर्ड FORD. तो देखिए हाइस के साथ, हैंसलॉट के साथ, फिर वैंग और शेन का आपस में कोलैबोरेशन है. तो दिस इज अ नेटवर्क, दिस इज अ कोलैबोरेशन नेटवर्क. इन्होंने आपस में कोलैबोरेट किया हुआ है. एक बार लेके जाइए ये डेलिन के पास. तो ये इन लोगों का, चारों का आपस में इन्होंने, दे हैव कोलैबोरेटेड विद ईच अदर. कॉल्फिन, दे हैव कोलैबोरेटेड विद ईच अदर. अच्छा, आप डेंसिटी पे जाइए तो एक बार इसकी डेंसिटी पे ऊपर देयर इज एन ऑप्शन डेंसिटी, ऊपर वाले जहां पर नेटवर्क लिखा है. हाँ, यस, गो टू डेंसिटी. यस, सो यू विल फाइंड कि कितना डेंस है ये, कहां पर मेजॉरिटी है, किस तरीके से है. यू विल हैव टू डू इट इन अ हिट एंड ट्रायल मैनर ओनली. अब एक बार बस लास्ट आ जाइए, सिंथेसिस पे आएंगे तो सिंथेसिस. हाँ, इसमें हमने सोशल स्ट्रक्चर देख लिया. क्लस्टरिंग, कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर में एक बार देखिए तो एक वर्ड क्लाउड आता है, आई गेस इसमें है नहीं. हाँ, थीमेटिक मैप पे जाइए. थीमेटिक मैप, हाँ, अपने आप ऊपर से सिलेक्ट करके. अच्छा, इसमें एक चीज और है, मुझे ध्यान से मेरे निकल रही है वो. हाँ, सेलेक्ट कीजिए आप अपने अकॉर्डिंग थीमेटिक मैप में क्या सेलेक्ट करेंगे ऑप्शंस में. हाँ, ऑल कीवर्ड्स रहने दीजिए. इसमें आप वो ये कि आप थीमेटिक मैप क्या होगा, इसमें एक वर्ड क्लाउड तरीके का बन के आ जाएगा. तो आप सारे कीवर्ड्स, जो मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, आप उनका देखना चाहते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजर कीवर्ड्स हैं. सो इट विल शो यू अ थीमेटिक मैप एंड इट विल बी यूजफुल फॉर योर पेपर एज वेल. आप उसको देख सकते हैं कि कौन सा जो बड़ा वाला शो हो रहा है, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे शो होते हैं. सो इट विल शो यू दोज काइंड ऑफ वर्ड्स. हाँ, जो मैं ये बोल रही थी वो ये बोल रही थी कि लेफ्ट साइड पे जब आप देखेंगे तो एक ऑप्शन में ऐसा आता है, जब ओवरव्यू में आता है कि सोर्सेज में आता है, आई एम फॉरगेटिंग दिस. ऊपर जाइए तो नहीं, आप मत जाइए प्रशांत जी, आप उसी को ही रन कीजिए जो कर रहे थे, आप वही कीजिए. बस आप लोग देख लीजिएगा कि जो जहां पर हम ये राइट, एक्सट्रीम राइट में ऑप्शंस में जा रहे हैं, तो वहां पर आपको 3 चीजें मिलेंगी एक जगह पे, कि कोलैबोरेशन होता है वो या क्या होता है, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम. तो वहां पर आपको देखना है कि आप ऑथर के बीच का, कंट्री के बीच का और कीवर्ड्स के बीच का आपको इंटर रिलेशनशिप देखनी है. आपको रिलेशनशिप देखनी है कि क्या मतलब क्या, कहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको मेजर 5 चाहिए, मेजर 10 चाहिए. तो इट विल शो यू. बस वो ऑप्शंस में यू हैव टू सेलेक्ट इट ऑन योर पर्टिकुलर, इट विल बी योर चॉइस कि आपको कितने ऑथर सेलेक्ट करने हैं, कितनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, टॉप 5 कंट्री या टॉप 10 कंट्रीज, टॉप 10 ऑथर्स. इस तरीके से आप वहां अपने हिसाब से ऑप्शंस पे सेलेक्ट कर सकते हैं. आई गेस थीमेटिक मैप इज टेकिंग टाइम. सो लास्ट में एक बस वो 3 फील्ड प्लॉट होता है मैम. अच्छा, हाँ, यस, 3 फील्ड प्लॉट. यस, थैंक यू. आप अगर इन केस थीमेटिक मैप इज टेकिंग टाइम तो हम रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं. प्रशांत जी, वी कैन जस्ट गो टू द रिपोर्ट. अच्छा, रिपोर्ट में एक सेकेंड, आपने कुछ सेलेक्ट किया था, रिपोर्ट में डाला था, सेलेक्ट ऑल कीजिए. शायद मुझे विजिबल नहीं है. एक्सपोर्ट रिपोर्ट कर लीजिए. आपके यहाँ पे ना साइड में ऑप्शंस आते हैं, पता नहीं आपके पास आ क्यों नहीं रहे हैं, अदरवाइज रिपोर्ट खाली आएगी. सेलेक्ट रिजल्ट्स टू इंक्लूड इन द रिपोर्ट. हाँ, नीचे आ गए ना, अब आए हैं. ये शायद थोड़ा इंटरनेट की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है. तो अगर आपको अभी 3 इन्फॉर्मेशन इन्होंने डाली है, मेन इन्फॉर्मेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर कंट्रीज,
और एक और बार शायद कॉरेस्पॉन्डिंग अदर कंट्रीज डाल दिया. नाउ यू कैन एक्सपोर्ट द रिपोर्ट, वो डाउनलोड हो जाएगी. यू कैन सी एंड यू कैन टेक दैट टू योर पेपर. I guess it is हो गया है क्या? दिखा दीजिए इसको. It is in Excel, and unfortunately, my Excel is creating some error. My whole office has been corrupted. Last night it happened with me. I'm unable to open that Excel file. Okay, no problem, no problem. बाकी अगर किसी का हो गया है तो you can see it. अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं. Rest assured कि वो आपका डाउनलोड हो जाएगा and you can take it to your paper as well. कोई बात नहीं प्रशांत जी, कोई बात नहीं, it's okay. I guess it is clear to you. Most of the things are clear to you. अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं. It is okay. Ma'am, can you please repeat the process of download once more? Of downloading what? This from BiblioShiny. From BiblioShiny? Like from if we want to take the things from BiblioShiny, the different authors who are colliding with each other and that all, we can take the things or not? You can just add it to the report. आप जो add का option आता है, plus का sign आता है, एक left side में देखिए जो left side में options है, you have to use them, you have to be handy with them. आपको खुद use करने पड़ेंगे, आपको खुद एक बार देखना पड़ेगा. Then अगर आपने कर लिया, you have done the analysis, उसके बाद आपको वो plus button है, देखिए most relevant author में जो ये plus button है, you just have to add the results to the report. Last में फिर left side पे एक बार प्रशांत जी दिखा दीजिए, left side पे ही last में it will show you report. फिर आप वो रिपोर्ट में डाउनलोड कर लेंगे. एक बार दिखा दीजिए लास्ट में जो ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, नीचे नीचे और नीचे और लास्ट में ये रिपोर्ट आ गया. रिपोर्ट जस्ट क्लिक ऑन द रिपोर्ट. उसके बाद इट विल शो यू डाउनलोड ऑल द रिजल्ट्स, एक्सपोर्ट द रिपोर्ट. वो उन्होंने ऐड कर दिया था, जो आपने ऑप्शन ऐड किया ना, प्लस का साइन लगाया, वो ऐड हो गया रिपोर्ट में. अब ये सारा रिपोर्ट को करके एक्सपोर्ट रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास. यहाँ से you can export the report. Am I clear? Yes, ma'am. इनका क्वेश्चन था. हाँ ठीक है. Can we like call it a day, प्रशांत जी? Yes, ma'am. It was so useful for all of us, I guess. And we are extremely thankful. Now I'd like to call Ms. Diksha Sable to give a formal vote of thanks to you, and some professors are also here in on this platform, and our Sameer Ahmed Wani sir, who has taken the very first session on BiblioShiny and our analysis. Devotion time, and unfortunately by the same day we have faced some technical issues because he is from Kashmir, and during that time in Kashmir some strike and other things were going on, and something happened, but somehow he had managed at that time in a so beautiful manner, and he is already having some publications in Q1. So now, for the very formal vote of thanks, I'd like to Mr. Diksha Sable. I think Diksha Sable, are you there? Hello, Prashant. Yes, thank you, Prashant. Yes, sir. Yes, sir. I think जो उस दिन रह गया था वो आज मैम ने सारा उसमें कवर कर लिया होगा. Yes, sir. Definitely, ma'am has given more emphasis on those things, but I cannot forget your emphasis, your contribution that you have given us by the very first session. It was so fruitful for all of us that we are learning these things
so beautiful manner from the side of yours, from the side of Ishita ma'am. She has given her time from her busy schedule. We are extremely thankful. Now, Diksha ma'am, please, will you give the formal vote of thanks? Ms. Diksha Sable. Yes, thank you, Prashant. I would like to express my sincere gratitude to our resource person, Ms. Ishita Chu, the entire organizing team of the Knowledge Bridge and Shode Foundation, and our respected professors who have been continuously supporting us in this initiative. Most importantly, I would like to thanks our learners, the scholars from across the country whose presence made this event truly successful. This is Diksha Sable on behalf of the entire organizing team of the Knowledge Bridge and Shode Foundation, extending my heartfelt thanks to each one of you. Forward to receiving the same enthusiasm from all of you in the future, and we will meet again in the last weekend of the coming month, May. Till then, keep smiling, keep learning, and keep researching. Thank you so much again, and have a wonderful day ahead. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, Ishita ma'am, from my side too. Ishita ma'am, it was wonderful to meet you Thank you. Thank in the you. online mode also. So, Thank you, Manish. Thank you. And Sameer sir, we are missing you here in the department. thank you, Prashant, for this wonderful organization. Thank you, Manish sir. Thank you, Diksha ji. Thank you, Jasmeet ma'am. Thank you, Mr. Motibur Rahman. You have coordinated it in a so beautiful manner. We are thankful for you also. Thank you, Ms. Shudha Yadav.